அப்படி தமிழில் சொல்லணுமா? அவரே சொல்லுங்க. हिंदी में चलेगा ना? इंग्लिश में ना सर. हाँ ओके सर. ओके 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 தானம்மா. என்னுடைய பெயர் லால் சிங் ஆரியா. நான் பிஜேபியினுடைய அகில இந்திய எஸ்சி மோர்ச்சாவினுடைய தலைவர். நம்முடைய இந்த பகுதிக்கு சவுத் இந்தியாவுக்கு நான் பிரவாஸ் வந்திருக்கின்றேன், டூர் வந்திருக்கின்றேன். அதிலே தெலுங்கானா, ஆந்திர பிரதேசத்தை முடித்துவிட்டு நேற்று சாயங்காலம் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இந்த அணியினுடைய முக்கியமான நிர்வாகிகளை சந்தித்துவிட்டு இப்போது மாநில செயற்குழு கூட்டத்திற்காக இங்கே வந்து உங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன். तमिलनाडु की जनता को बधाई देना चाहता हूँ. पहली बार भारतीय जनता पार्टी के 4 असेंबली मेंबर यहाँ से जीता कर रहे हैं. एल मुरुगन जी हमारे स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट को असेंबली इलेक्शन में घोटाला करके डीएमके ने चुनाव हराया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने विदाउट एमपी एल मुरुगन जी को केंद्रीय सरकार में मिनिस्टर बनाकर तमिलनाडु के दलितों का सम्मान किया है, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना का सम्मान किया है और हिंदुस्तान के संविधान का सम्मान किया है. உங்களுக்கு தெரியும், முதல்ல நான் தமிழக மக்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 4 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை நீங்கள் தேர்வு செய்து சட்டசபைக்கு அனுப்பியிருக்கின்றீர்கள். அதில் குறிப்பாக இதற்கு முன்னால் இருந்த மாநில தலைவர் எல் முருகன்ஜி அவர்கள் அவருடைய தொகுதியிலே போட்டியிட்ட பொழுது அவரை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேலை செய்தது. ஆனால் நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் விடவில்லை. ஒரு அவையிலே எம்பி இல்லை என்ற போதிலும் கூட நம்முடைய உண்மையான அரசியலமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்கிறது, உண்மையான நம்முடைய பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய பேச்சுக்கள் என்ன சொல்கிறது, ஒரு தலித் மக்களை மேம்படுத்துவதற்காகத்தான் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்கிறது. நரேந்திர மோடிஜியும் அப்படித்தான் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார். எந்த அவையிலுமே எம்பி இல்லாத ஒருவரை மத்தியிலே அமைச்சராக்கி தமிழகத்திற்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய தலித் மக்களுக்கும் எஸ்சி மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய பெருமையை நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். देश 1947 में आजाद हुआ, भारत का संविधान बना. भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, शैक्षणिक न्याय, सबको बराबरी का अधिकार. हिंदुस्तान में पहली बार नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है जिसमें पहली बार 12 मिनिस्टर एससी, 8 मिनिस्टर सबसे पहली बार हाईएस्ट, 8 मिनिस्टर एसटी, 28 मिनिस्टर ओबीसी, 11 मिनिस्टर वुमेन. हिंदुस्तान में अभी तक इतनी महिलाओं को, इतने एससी को, इतने एसटी को, ओबीसी को मिनिस्टर नहीं बनाया गया. ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने किया है. इसलिए हिंदुस्तान के एससी के समाज की ओर से, एससी मोर्चा की ओर से मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का सम्मान किया है, उनकी भावना का सम्मान किया. உங்களுக்கு தெரியும், நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த பொழுது 1947 நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கம் மக்களுக்கு நியாயம் கொடுக்க வேண்டும் என்று. அது சமூக நீதியாக இருக்கட்டும், அரசியலே நியாயமாக இருக்கட்டும், தாழ்த்தப்பட்ட அனைத்து சமுதாயத்தையும் மேலே உயர்த்துவதற்காகத்தான் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்து அறுபாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். இத்தனை வருடம் அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கும் பொழுது இப்பொழுதுதான் முதலாக உங்களுக்கு தெரியும், இந்த அமைச்சரவையிலே 12 நண்பர்கள், நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் எஸ்சி சமுதாயத்திலிருந்து வந்தவர்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றிருக்கின்றார்கள். 8 சகோதர சகோதரிகள் எஸ்டி சமுதாயத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றார்கள். ஓபிசி அதர் பேக்வர்ட் காஸ்ட் சமுதாயத்திலிருந்து 28 சகோதர சகோதரிகள் பதவியேற்றிருக்கின்றார்கள். 11 பெண் அமைச்சர்கள் பதவியேற்றிருக்கின்றார்கள். இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இதுதான் உண்மையான சமூக நீதி என்று நமக்கு புரிவது மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு சொல்ல நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன்.
எங்கள் அனைவரின் சார்பாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கு நான் என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். कांग्रेस ने सदैव दलितों का अपमान किया है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, गरीबों की उपेक्षा की है। बाबा साहब अम्बेडकर के 5 मेमोरियल है। संकल्प भूमि बड़ौदा गुजरात, जन्मभूमि मऊ इंदौर मध्य प्रदेश, परिनिर्माण भूमि 26 अलीपुर और दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई और दीक्षा भूमि नाम को कांग्रेस ने 57 ईयर केंद्र सरकार में रहने के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर का एक भी मेमोरियल नहीं बनाया। इन 5 मेमोरियल को बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो नरेंद्र मोदी को, शिवराज सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी को जाता है। कांग्रेस ने अम्बेडकर जी को 1952 का चुनाव हराया, 1953 का बाई इलेक्शन चुनाव हरा के अम्बेडकर जी का अपमान किया। अम्बेडकर जी को मरने के 43 वर्ष बाद भी भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने। सेंट्रल हॉल में उनका तेल चित्र भी नहीं लगाया। ये काम भी जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी के होता है या भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के प्रयास से भारत रत्न का सम्मान वीपी सिंह की सरकार में मिलता है। इसी प्रकार से गरीबों की योजनाएं कांग्रेस ने कभी नहीं बनाई। गरीबों को नारा दिया गरीबी हटाएंगे, लेकिन कभी गरीबी हटाई नहीं। इसलिए 65% गरीब रहा देश में। नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय बनाकर महिलाओं को सम्मान दिया, गैस सिलेंडर चूल्हा देकर महिलाओं के हाथ जलने से बचाया, आयुष्मान योजना जारी करके लोगों के मकान, जमीन और जेवर बेचने का काम रोकने का काम किया, सम्मान किया, झोपड़ियों को हटाकर पक्के मकान देने का काम किया, हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया और अब 2025 तक हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 10 करोड़ से 32 करोड़ बढ़ाकर 40 करोड़ गरीबों के बैंक में खाता खोल दिया ताकि एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। सीधा डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके हाथ में जाता है। 59,000 करोड़ रुपए एससी के पोस्ट मैट्रिक बच्चों के लिए नरेंद्र मोदी ने जारी किया। 1944 से लेकर 1 साल पहले तक केवल 1100 करोड़ रुपए खर्च होता था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको बढ़ाकर आने वाले 5 वर्ष के लिए 59,000 करोड़ कर दिया ताकि एससी के पोस्ट मैट्रिक बच्चों का बैग ड्रॉप ना हो। एक ऐतिहासिक काम गरीबों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का भी मैं उनके नाम से जारी किया। मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कांग्रेस ने अम्बेडकर जी के नाम से एक भी योजना का नाम नहीं रखा, एक भी बिल्डिंग का नाम नहीं रखा, अपने घर के लोगों के नाम रखे, अम्बेडकर जी के नाम से नहीं किया है। और इसलिए देश का एससी वर्ग ये समझ गया है कांग्रेस दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी दलितों की हिमायती है, गरीबों की पक्षधर है। और इसलिए अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे ऑल स्टेट्स में संगठनात्मक दृष्टि से बूथ तक बीजेपी के एससी मोर्चे की टीम को खड़ा करना, मंडल की टीमों को खड़ा करना, सेवा के काम करना जो कांग्रेस कभी नहीं करती है। अभी आप देख लीजिए सेवा कार्य पार्ट 2, सैनिटाइज बीजेपी का कार्यकर्ता बांट रहा है, मास्क बीजेपी का कार्यकर्ता बांट रहा है, भोजन बीजेपी का कार्यकर्ता बांटता है, कांग्रेस का कोई लीडर नहीं दिखाई देता। वैक्सीनेशन फ्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 9 महीने का भोजन 80 करोड़ लोगों को, 90,000 करोड़ का फ्री भोजन नरेंद्र मोदी पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब ये है नरेंद्र मोदी गरीब हितैषी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी अंबेडकर हितैषी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी दलित हितैषी प्रधानमंत्री। क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा था कश्मीर में 370 धारा नहीं होनी चाहिए, वो 370 आर्टिकल 370 अंबेडकर जी का सपना था, उसको खत्म करके नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर के सपने को पूरा किया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा किया है। यानी कि नरेंद्र मोदी भारत का स्वाभिमान है, भारत का सम्मान है, वो भारत के स्वाभिमान को ऊंचा ले जाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना ये दीनदयाल जी का था,
ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, ये अम्बेडकर जी का था, ये सरदार पटेल का था, ये महात्मा गांधी का था। इन महापुरुषों के भावनाओं का सम्मान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए भारत की जनता की ओर से भी और एससी की ओर से मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।